Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is How Cash Flows. Let's be attentive and listen to the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Try to understand your cash flow patterns, how the money moves in your hands. That will help you to understand why you are struggling financially. You should know for why some people it goes up and for some people it goes negatively. Making more money often will not solve your problem. It will also increase your problem because as your income goes up, your expenses also will go up. You don't need to make more money, but you should know where your money goes. How the cash flows from your hands, you should know it. Not only you should know how to make money, but also learn how to manage your money, which is more important. Today you will understand how money flows from the poor people, middle people, and rich class people. Also, you must know the difference between the asset and the liability. An asset puts the money in your pocket, a liability takes away the money from your pocket. Assets we own, liabilities are the things we owe. We need to return to the people. We are all responsible to pay back. Rich people acquire the assets. The poor middle class acquire the liabilities, thinking that they are assets, but they are not assets, but it's a liability. Rich people buy the time, rich people sell distractions, rich people buy the skills, rich people invest in growth, rich people plan for the future, poor people live for the moment. See, it varies from people to people. Now, you need to learn the financial literacy. It means budgeting, saving, investing, managing your debt, and managing your risk factors to enjoy your financial freedom. You need to move the present situations to your financial freedom. If you want to be rich, simply you spend your life in buying the assets. If you want to be the poor or the middle class, spend your life on buying the liabilities. Then you will be generationally poor. We are trying to help you to enjoy your financial freedom in the future by changing your mindset. Poor people always talk about the problem, rich people talk about the solution. It starts with our thinking. You need to change the way you think. That's where all the secrets you will understand. Now, I will show you how the cash moves from the poor people, middle class, and the rich people. Look at this picture. The poor people, whatever they earn the money through their salary or their job, they spend it. There's no money invested in their assets. Middle class also, they get the salary and they make money, but they spend it on their liabilities like mortgage, car loans, and debit cards, school loans. The balance they spend it against on expenses. Here also, no assets investment. Now you look at the rich people. They get that income, they invest on the assets. Then only their expenses and the liabilities, because they overcome their liabilities, they invest the money to make more money. So today you need to know your financial knowledge, how money works differently for the different people. I will give you the 4 scenarios. How can you move from working for money, allowing you to money work for you? Let's look at an employee. That means you have a job, then the amount of active works determines your income. That means you have more time, more money. If you think of the business owner, you have a system. Income does not depend on active work because people work for you. That's there. But look at the self-employed. You own a job, but the amount of active work again determines your income. That means time is the money. But for an investor category, you own the investment. Your income does not depend on your active work.
money produces the money, because the investor owns investment money working for them. So time and money available for them to spend to fulfill their life purposes and fulfill their goals. Rest you can watch. आज हम लोग स्टडी करेंगे हमारे हाथों में ये नकदी का प्रभाव कैसे होता है, हाउ द कैश फ्लोज इन आवर हैंड्स. सो आपको पैटर्न को स्टडी करना पड़ेगा. कितना पैसे आते हैं जल्दी आपको हाथ से निकल जाते हैं, इसका मतलब आपको अपना आप को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि समथिंग इज रॉन्ग इन योर पैटर्न. It's not the money, it is not the people, or it's not the problem. Something in your cash flow pattern you need to make a change. बहुत लोग एक प्रोफेशनल्स का लाइफ में भी, बड़ा लोग ज्यादा कमाने वाला का लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होते हैं. So not only to make the money, but we need to learn how to manage the money. Money management बहुत important चीज है. So इस स्टडी को आप समझ लिया है तो आपको हाथ में पैसे रुक जाएगा और आपको फालतू खर्चा नहीं जाएगा, निवेश की ओर से जा सकते हैं. बहुत लोग काफी सीखा है, बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत कर कर कमाने के लिए भी सीखा है, बट दे डोंट नो हाउ देयर मनी कैन वर्क हार्ड फॉर देम. वो लोग अभी तक नहीं समझते हैं वो पैसे उन्हीं के लिए कितना कार्य कर सकते हैं. So let's study how the money flows in different people's life. अलग अलग लोगों को जीवन में कैसे पैसे नकदे प्रभाव कैसे होते हैं हम स्टडी करेंगे. शायद पुअर पीपल हो, मिडिल क्लास है, रिच पीपल है, ये अलग अलग हाथ, सभी के हाथों में तो पैसे चलते हैं, बट लेट अस स्टडी हाउ इट गोज इन आवर हैंड्स. So we must know the difference between the asset and liability. That's very important. An asset is the sampati that puts the money in your pocket, but liability takes the money away from your pocket. So the asset is what we own, the liability is what we owe. We have to return to the people even as soon as we get the money. So today let's understand the difference. देखो आपको सामने आपको दिखता है, वो क्लियरली बताते हैं asset is your owning, वो आपका संपत्ति है. उसमें बहुत कुछ हो सकते हैं, कैश हो सकते हैं, बिल्डिंग हो सकते हैं, मकान हो सकते हैं, ज्वेलरी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है. बट लायबिलिटी है लोगों को आपने वापस लौटाना. किसी से लोन लिया, आपको EMI पेमेंट करना गए, आपको बिल्स पेमेंट पेंडिंग आउटसाइड गए, काफी खर्चा आउटसाइड है, उसको वापस लौटाना है. सो इस डिफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों काफी लोग कमाने के बाद भी गरीब रहते हैं, संघर्ष करते हैं. इसको जानकारी प्राप्त किया तो काफी आपको लाइफ में फर्क लेकर आएगा. सो रिच पीपल, देखो अमीर लोग है संपत्ति को कैसे अर्जित करना है वो जानते हैं. गरीबी लोग वो है सोचते हैं ये मेरे पास संपत्ति है, बट वो संपत्ति नहीं है, वो कर्जा है. दैट इज योर लायबिलिटी. वी डोंट इवन समटाइम्स वी अंडरस्टैंड दैट. इसलिए है इस आर्थिक विषय के ऊपर जानकारी लेना बहुत जरूरी है. फाइनेंशियल लिटरेसी. दैट्स व्हाई वी टीच बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, डेब्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ऐसे बहुत कुछ चीज है. इसको जानकारी लेना हमारे लिए एक आर्थिक एक आजादी को लेकर आ सकते हैं. अदरवाइज लाइफ विल कंटिन्यू लाइक दिस. सो हाउ द कैश फ्लो, we need to really make it clear in our life. So if you want to be a rich, grow in the financial freedom, you need to spend the money on buying the assets. आपको संपत्ति के ऊपर आप निवेश करना, खर्च करना है. आपका हाथ को पैसे उसी डायरेक्शन में भी थोड़ा जाना चाहिए. नहीं है तो क्या होता है, लोग लायबिलिटी को करते हैं, खरीदते हैं. वो सोच रहे हैं हमारे लिए संपत्ति है, संपत्ति नहीं होता है. इसलिए
लाइफ पूरा पीढ़ी से पीढ़ी तक काफी लोग हमेशा गरीब रहते हैं। ये प्रभु का अनुग्रह से इस बात को मैंने काफी साल पहले मैंने इसको सीख लिया। इसलिए मैंने जान लिया कि ओनली जब जरूरत है हम उसको खर्च करेंगे, नहीं है तो नहीं खर्च करेंगे। you need to the difference between the real need and the felt need। वास्तविक आवश्यकता है और मैं महसूस किया गया आवश्यकता है, दोनों का फर्क है। रियल नीड के ऊपर फोकस कर हम खर्च करना बहुत जरूरी है, ताकि कुछ कैश हम लोग निवेश कर सकते हैं। नहीं तो महसूस करते हैं तो इमोशनल होकर बहुत कुछ खर्च कर सकते हैं। देखो, अमीर लोग है, कुछ धनवान लोग है ना, उनको बस जानकारी ज्यादा है। मैं एक किताब को स्टडी कर रहा था, कोविड का समय में अमीर लोग 35% और अमीर हो चुका था, गरीब लोग और गरीब हो गया था। इसलिए मैं इस बात को आपको कोशिश करता हूँ सिखाने के लिए इस बाइबल स्टडी को दोबारा है, आप उस आर्थिक एक फ्रीडम अपना लाइफ में अनुभव करेंगे, आप एंजॉय करेंगे। सो यू नीड टू मूव टुवर्ड्स द फ्रीडम थ्रू द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, अदरवाइज फ्रीडम नहीं हासिल नहीं कर सकते हैं। गॉड वांट्स यू टू मूव एंड टू एंजॉय द फाइनेंशियल फ्रीडम। इसलिए है आज हम इसको शिक्षा को हम सीखते हैं। देखो, मैं आपको 3 प्रकार के लोगों को उसका जिंदगी में कैसे कैश फ्लो हो रहा है मैं स्टडी देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हाउ द कैश फ्लो मूव्स इन द पुअर पीपल। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी पिक्चर में आप ही देखेंगे द पुअर मैन। देखो, आपको एक साइड में एक पिक्चर उसको दिखते है, जब इस ग्राफ में पैसे आमदनी आते हैं, कमाते हैं और नौकरी करते हैं, जब पैसे आते हैं ऐसे निकल कर चला जाता है, खर्चा में चला जाता है। सो दैट मीन्स उनको रेंट देना है, खाना पीना का खर्च करना है और उसको ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, ये सभी खर्चा में चला जाता है। कोई संपत्ति के ऊपर निवेश नहीं हो पाता है, असेट्स इज 0, लायबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि गरीब लोगों को कोई लोन भी नहीं देते ना, दूसरा लोग पेमेंट भी नहीं करते, इसलिए कितना कमाते डे टू डे खर्च कर देते हैं। सो व्हाट एवर द इनकम कम्स इट गोस आउट, कोई सेविंग नहीं हो पाता है। इसलिए अपना रोज का जरूरत को स्ट्रगल करते हैं, हमेशा लोग से मदद मांगते हैं। देखो, काफी बार हम बोलते हैं ना, हमारा भी ऐसे अवस्था है, आप चेक करिएगा। शायद आपके पास अपना बारे में एक पुअर सेल्फ इमेज है, क्योंकि मैं अपना बारे में कम सोचता हूँ, दूसरा को इम्प्रेस करने के लिए मैं ज्यादा भी खर्च कर सकता हूँ। शायद उसको कारण से भी मेरे हाथ में पैसे नहीं बचते। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना आप को छोटा समझता हूँ, मैं अच्छा महंगा ब्रांड कपड़ा पहनने के लिए कोशिश करेंगे, हर एक महीना कपड़ा करूंगा, मैंने दिखाने के लिए, मैं इम्प्रेस करने के लिए खर्च करता हूँ। वो आपका खर्चा है, एक्सपेंसेस है। गरीब इसलिए है, उसको पुअर सेल्फ इमेज हो सकता है। इट्स अ माइंडसेट, एक्चुअली इट्स रियली अ माइंडसेट। जरूरत तो है बट हम जस्टिफाई कर देते हैं। अभी आप देखेंगे दूसरा लोग है, जैसे मिडिल क्लास लोग है, उन्हीं का लाइफ में कैश कैसे फ्लो होता है। सब इस पिक्चर्स में आप देखेंगे, हम लोग ज्यादा लोग मिडिल क्लास लोग है। उस ग्राफ देखिएगा, पहले शुरू होता है उसको आमदनी से, शायद सैलरी होगा, कुछ भी काम करेगा उसको मिल जाता है। सीधा देखो ग्राफ नीचे आते आते कहाँ आते हैं, पूरा लायबिलिटी साइड में आता है। असेट्स का नहीं खर्च होता है, पूरा लायबिलिटी साइड में आता है। दैट मीन्स उसको कार लोन गए, क्रेडिट कार्ड का गए, स्कूल फीस गए, लोन गए, एजुकेशनल लोन गए, इसका गए, उसको वापस करना गए, सब पहले लायबिलिटी में पेमेंट करेगा। फिर उसके बाद अपना बच गया तो अपना खर्च करते गए, जैसे घर का रेंट होगा, फीस होगा, गए खाना पीना का बाकी है, वो खर्चा में ही जाएगा। सो पहले आमदनी कहाँ जाता है, पूरा आपको ईएमआई खर्च करने के लिए जाता है। मकान का लोन लिया, गाड़ी का लोन लिया, इसका लोन लिया, पूरा ईएमआई कट जाता है।
बाकी थोड़ा बच जाते हैं, वो हमारा कर्ज का उठाते हैं। ये गलत है, ये गलत नहीं है, बट समवेयर वो हमारा ट्रैप है, एक जाल में हम लोग फंस गया है। इधर भी है, मिडिल क्लास लोग भी है, हम लोग कुछ चीजों के ऊपर ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं ताकि हम लोगों को इसको दिखाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर्स में आपको देते हैं, आमदनी आते हैं, सीधा एक एरो देखो लायबिलिटी में जाते हैं। होम लोन है, रिपेयर करना है, ये घर का रिपेयर करना है, गाड़ी लेना है, उस लेना है, इसका पेमेंट करना है, वो जाता है। फिर वापस कहाँ जाएगा? हमारा फूड के ऊपर, क्लॉथ के ऊपर, हमारा रेंट का ऊपर, कुछ भी है, हमारा बिजली के बिल, पानी के बिल, ये सब खर्चा है। फर्स्ट कैसे जाता है? ज्यादा लायबिलिटी के ऊपर, क्योंकि आपने ज्यादा उधार ले लिया, ज्यादा जल्दी बात में आपने कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया सोचकर मेरा मकान होने से, गाड़ी होने से, ये होने से मेरा ये संपत्ति है, बट वो संपत्ति नहीं रहा है, वो आपको लायबिलिटी बन गया है। फिर आपको एक्सपेंसेस में चले जाते हैं। कैश कैसे फ्लो होता है इनके लाइफ में है। नाउ तीसरा ग्रुप का लोग है, कुछ अमीर लोग है, वो कैसे अमीर बन जाते हैं, उसको कैसे पैसे होते हैं। जैसे ही बताते हैं, रिच पीपल निवेश करते हैं, गरीब लोग कितना कमाते हैं वो कर्ज कर देते हैं। सो उनको वेल्थ को बढ़ाने को उसको पैसा नहीं बच पाता है, क्योंकि रिच पीपल थिंक डिफरेंटली। सुनिएगा, सभी हमारा माइंडसेट से, थिंकिंग से ही चेंज होता है, क्योंकि जब हम ऐसे सोचते हैं वो नहीं सोचते हैं। वो देखो, जब उसको इनकम आता है, ग्राफ देखो सीधा नीचे असेट के ऊपर जाता है। फर्स्ट उसको फोकस करेगा, दे विल बिल्ड द असेट्स। उसको किसी को इम्प्रेस करना, किसी को दिखाना है, हमारा स्टेटस बढ़ाना, कोई चक्कर उसको नहीं है। ओनली नीचे आते आते हम स्ट्रगल करते हैं। सो दे इन्वेस्ट इन द रियल एस्टेट करेगा, स्टॉक करेगा, कुछ प्रॉपर्टी खरीदेगा, कुछ ऐसे निवेश करेगा, उसको पैसे को बढ़ाएगा, आमदनी का। उसको बहुत खर्चा लायबिलिटी साइड में, एक्सपेंसेस साइड में जाता है। फिर क्या करते हैं उसमें, ये असेट से, उनको संपत्ति से भी कुछ महीना में प्राप्त होता है, वापस वो इनकम में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मकान रेंट पर दिया, तो रेंटल इनकम आ गया, दोबारा उनको इनकम बढ़ गया। कार को उन्होंने अपने उसको दिया रेंट पर, उसको आएगा ना। तो कुछ निवेश किया गया, उसको इंटरेस्ट आ रहा है, वो शायद इनकम के ऊपर बढ़ जाता है। ये कैसे होता है? पहले कुछ साल, कम से कम 5-10 साल बचाकर अपना आप को कंट्रोल करते हैं लोग, सेल्फ कंट्रोल कर निवेश कर उसको कैपिटल को बढ़ा देते हैं, फिर आमदनी शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल, इट्स इन अवर माइंडसेट, दे थिंक डिफरेंटली। पैसे भी आते हैं, एक साइड में नहीं डालते। जैसे आपने पिक्चर्स में देखा था ना, अलग अलग प्रकार का, इतना परसेंटेज इसमें डाल दिया, उसको थोड़ा उसमें डाल दिया, ऐसे करते गए। अभी आपको सामने तीनों प्रकार का ग्राफ दिख रहा है। जैसे अलग अलग प्रकार का लोगों को हाथों से कैसे पैसे मूव होते हैं। पहले आप देखेंगे ग्राफ आते हैं, पूरा अपना डे टू डे खर्च में चल जाता है। इसलिए हमेशा हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम गरीब ही रहते हैं। असेट भी नहीं है, लायबिलिटी भी नहीं है। पैसे आया, कितना हमारा पास आया है, हम लोग उतना हमारा खर्च में चला गया। दूसरा बीच वाला कैटेगरी का लोग देख लिएगा, उसको क्या हो गया, आमदनी आ गया है, फिर असेट तो है नहीं, निवेश करने के लिए पैसे बचा नहीं, पूरा उसको लोन को वापस लौटाने में चला गया, बाकी बच गया है, पूरा उसको कर्जा में हो गया। इसी स्टेज के इन्हीं का हालत ही है। अभी क्यों हो गया, कौन राइट रॉन्ग हम नहीं बात कर रहे हैं, भी देखो लोग कैसे सोचते गए, कैसे उस जाल में फंस जाते हैं। तीसरा कैटेगरी है
वो देखो अभी तीसरा कैटेगरी वो लोग आमदनी में आकर असेट को बिल्डअप करते हैं। वो असेट साइड इसको टिक मार्क है, क्यों? उसको सोच समझकर पहले से गए, इसलिए हम बोलते हैं कम उम्र से गए, हमने आपको सिखाया गया निवेश करना, बचत करना गए, थोड़ा आप करेगा तो आपको आने वाला समय में भविष्य को, अगले पीढ़ी को हम हमारा लंबा समय के बाद हमारे पास संपत्ति होगा, वो आपको कमा कर देगा। सो दैट असेट विल प्रोड्यूस द मनी दैट विल टेक केयर। क्योंकि ये लोग जानते हैं एक समय के बाद शायद हम काम नहीं कर पाएंगे, हमारा स्ट्रगल होगा, हमने क्या निवेश कर रखा है वो उसको आएगा। सो पैसा पैसे को पैदा करते हैं, वो लोग उसको जानते हैं, वो नहीं आता है। बट द प्रॉब्लम है बहुत लोग एक एक जाल में फंस गया गए। कुछ साल पहले भी मैंने पता था ना, रैट रेस, मेरा अभी भी याद है आपको, रैट रेस के बारे में बताए, चूहा का दौड़ कैसे होता है, दौड़ते रहते हैं। अभी आप पिक्चर में देखते हैं कि टॉप में हम मेहनत करते हैं, वर्क एक्चुअली हार्ड वर्क करते हैं, पैसे कमाने के लिए हम सब लोग हार्ड वर्क करते हैं। उसके बाद क्या आता है, हमारा आमदनी हमारा हाथ में आता है, हम बहुत खुश होते हैं, भाई देखो मैंने कमाया, मेरे हाथ में इतना पैसा आ गया। फिर क्या जाता है कि उसको नीचे देख लिए, लेफ्ट से नीचे अपना बिल पेमेंट करने के लिए चला जाता है। क्यों? हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने रेंट देना है, मैंने बिजली के बिल देना है, ट्रांसपोर्ट का करना है, स्कूल का फीस का करना है, किराना दुकान का देना है, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना है, पेरेंट्स को मदद करना है, पैसे पहले उसमें जाता था। फिर उसके बाद थोड़ा पैसे आते गए नीचे गए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, एक तत्कालिक एक संतुष्टि के ऊपर लोग खर्च करते गए, अपना लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए खर्च करते गए। कुछ बात पैसा आ गया, फिर हम लोग स्टेटस बनाने को, लाइफस्टाइल को थोड़ा महंगाई बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग हो गया आजकल, आसानी से क्रेडिट कार्ड से आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर दिया गया। कुछ ऐसे कुछ हमारा टाइम पूरा फिल्म के ऊपर, रील्स के ऊपर, वीडियोस के ऊपर, इसी के ऊपर खर्च करते गए। और हम लोग घर का खाना नहीं, लाइफस्टाइल है बाहर खाने का वो खाते गए, हमारा डाइट को मेंटेन नहीं करते गए, हमने स्वीट खाते गए, जंक फूड को हम ऑर्डर करते गए, खाते गए। क्यों? तत्कालिक संतुष्टि होता है ना, हमको अभी सोच लिया मेरे को अभी चाहिए, मेरे को चाहिए तो मेरे को चाहिए गए, तुरंत ऑर्डर करते गए अपना लाइफस्टाइल को। कपड़ा लेना गए, मैंने अच्छा फील कर दिया, मैंने ऑर्डर कर दिया, खरीद लिया। इसके बाद बच गया तो क्या करते गए, अधिक जीवन यापन करने का। सो दैट मीन्स लिविंग बियॉन्ड योर इनकम, हमारा आमदनी से बढ़कर हम लोग को आगे इम्प्रेस करने के लिए खर्च करते हैं। एक तो संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, दूसरा है अपना आमदनी से बड़ा आदमी बनकर दिखाने के ऊपर भी थोड़ा खर्च करते हैं। क्योंकि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, वो कर रहे गए तो मैं क्यों नहीं कर सकता है ना। अभी प्रोग्राम आ रहे, उतना खर्च कर रहे हैं, वो पार्टी बना रहे, अभी बर्थडे पार्टी है, वेडिंग एनिवर्सरी है, बहुत कुछ घर में 5 लोग है, 5 लोगों को पार्टी बनता है। वो लोग उसको नहीं करते, क्योंकि सभी लोग पार्टी बना रहे तो मैं भी करना, मैं सिंपल करेंगे तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेगा, इसी के फीलिंग में उसको वो पैसे चला जाता है। उसको बात बच गया तो इसका बाद में उनके पास लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, लोग से उधार लिया है, सो इसको देना है, सो वो लोन का पेमेंट भी पूरा नहीं होता है। फिर और मेहनत करना बोलकर और हम लोग मेहनत करना और स्ट्रगल करते हैं और ओवर टाइम करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं, क्योंकि पैसे बचते नहीं है, मेरा खर्चा पूरा नहीं होता है। ये एक रेस है, ये दौड़ है, वो रुकते नहीं है, दौड़ते रहते हैं, उसको स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि कहाँ भी स्टॉप करेंगे बीच में हमारा लाइफस्टाइल भी ऐसे हो गया, माइंडसेट ऐसे हो गया, फिर हम लोग आ गए इस दौड़ में दौड़ते रहेंगे। ये एक जाल है, ये लोग काफी लोग फंस जाते हैं। नाउ अभी सवाल ये आता है, हम लोग उस जाल में फंस गया तो कैसे बाहर आएंगे।
एक मंकी का जाल, मंकी ट्रैप हम लोग छोटा स्कूल में भी हम लोग पढ़ा किया है। मंकी ने एक जैसे एक, ये तो आपको पिक्चर में देखते गए, अंदर एक फल का अंदर एक बीज उठाने के लिए, नट्स को उनको बहुत पसंद है, उन्होंने क्या कर दिया गया, थोड़ा एक निशाना बनाकर होल बनाकर छोड़ दिया, सिर्फ हाथ अंदर जा सकते। उन्होंने हाथ अंदर किया गया, पूरा हाथ भरकर उन्होंने नट्स को ले लिया। अब बाहर लेने के लिए कोशिश कर रहा था, वो नहीं आ रहा। उसी के टाइम में तो लोग पकड़ने वाला आकर उसको पकड़ा देते। नाउ द प्रॉब्लम इज मंकी डजंट वांट टू लेट गो। नट को छोड़ने के लिए उसको मन नहीं है, इसलिए वो जाल में वो फंस जाता है। क्या आप कभी ऐसे फील हो रहे थे? मैं भी अपना पर्सनल व्यक्ति के जीवन में, हमारा काम में, सेवा में, बिजनेस में, नौकरी में, क्या हम लोग भी एक फंस गया? ना तो इधर ना गई मूव नहीं कर पा रहे, ना तो छोड़ भी नहीं पा रहे। क्या क्या ट्रैप हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। सब हैबिट के ऊपर होता है, माइंडसेट के ऊपर होता है। सपोज आजकल ऑनलाइन में खरीदना गए, टाइम स्पेंड करना भी एक ट्रैप है। कुछ लोग एडिक्शन, नशा में हो जाता है ना, अल्कोहल हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं, आजकल फोन भी हो गया लोगों को जीवन में। और बाहर खाने के लिए, पार्टी बनाने के लिए, बाहर खाने के लिए एक ट्रैप हो सकता है। शॉपिंग करना गया, चलो हम वीकेंड हो गए शॉपिंग करेंगे। ये भी मैंने देखा, आत्मिक लोग गलत एक लोग फंस जाते हैं। वो लगता है कि वो गॉड मैन है, बाबा है और आत्मिक बाबा है, वो भी है, ट्रैप कर देते हैं। इसके पैसे देना, उसको देना, ये प्रोग्राम है, ऐसे करने से आपको ठीक होगा, ये देना है, वो भी उसी में बहुत पैसे उसमें भी चले जाते हैं। और इसके बाद लोग हमको इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं। भाई आप किससे थोड़ी कम है, वो कर रहे तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा आस पड़ोस, फैमिलीज, रिलेटिव्स जाते हैं, किसी ने अपना फ्रेंड्स को ऊपर, और आजकल यही हो गया सेक्स पार्टनर्स के ऊपर लोग खर्च करते हैं। सो मैं भी बहुत प्रकार के लोग फंस गया। बट गॉड इज टेलिंग यू नीड टू कम आउट। फ्रीडम पॉसिबल है, आप बाहर आ सकते हैं। देखो, पैसे ज्यादा कमाने से परिवार को संतुष्टि नहीं लेकर आ सकते। अच्छा, ये गॉडली फैमिलीज को हम देखते हैं, हम आजकल हम एनकरेज करते हैं, आपको फैमिली का बच्चे लोग खास है उसको टाइम देना। कल मैं भी ट्रेनिंग में गया तो बोल रहा था, मेरे बच्चे को मैंने हॉस्टल में डालना, बड़ा है, ऑलरेडी टीनेजर है। आई सेड दैट इज नॉट द वाइज डिसीजन। देखो, आपको 4-5 साल ही बच्चे आपके साथ रहेगा, परिवार में गिव देम अ बेस्ट टाइम, आप उसको टाइम दे दिएगा। मेक देम एज अ फ्रेंड्स, स्पेंड टाइम, टीच द वैल्यूज, बिल्ड देयर लाइफ उसको, क्योंकि बाहर जाएगा उसको परिस्थिति में फेस नहीं कर पा रहा है। आजकल बच्चे फंस जाते हैं, जाल में फंस जाता है, सही दोस्त का हो और किसी का भी हो, वो फंस सकता है। वी नीड टू बी देयर। फॉर एग्जाम्पल, आजकल माँ बाप के पास टाइम नहीं है, बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन को दे देते हैं। सो क्या है, बच्चे मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं अपना फोन में बिजी हूँ, मैं अपना काम में मस्त रहता हूँ। बच्चे को चुप करवाने के लिए उसको हाथ में देते हैं, बच्चे भी जाल में फंस गया, मोबाइल फोन को जाल में। इसका मेंटल क्रिएटिविटी खत्म हो गया, आई साइट वीक हो रहे है, उसको और कॉन्सेंट्रेशन का कैपेसिटी खत्म हो रहे है। इसको अभी 5 साल के बाद क्या नुकसान दे सकते हैं, लोग उसको नहीं जानते हैं। हमारा गलती अगले पीढ़ी तक लेकर जाता है, वो आगे जाएगा काम करने के लिए, कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, कोई भी पसंद नहीं करेगा। Whose fault? It's our fault. So make sure you do the correct things in the correct times. खुदा तो जाते हैं हमको बाहर लेकर आने के लिए, जैसे मिस्र देश में, इजिप्ट में लोगों को गुलामी से बाहर लेकर आया, कैसे के लायबिलिटी से असेट में लेकर आने के लिए प्रयास किया, खुदा ने कोशिश भी किया, बट उनको माइंडसेट ने उसको एंजॉय पहुंचने के लिए मदद नहीं किया।
माइंडसेट ने उनको डिस्ट्रॉय किया। दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव अ राइट अंडरस्टैंडिंग सो दैट आप उस रास्ता में जाएंगे, सही आपको हाथ से कैश फ्लो प्रॉपरली जाएगा, आप अंतिम उस आशीष को और उस आजादी को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत लोग नहीं पहुंच पाते, स्टार्ट तो करते गए कुछ समय के लिए, बट स्थिर नहीं रहने के कारण से नहीं हो पाया। इसराइलाइट्स लोगों को जीवन में भी हम उस बाइबल में उस कहानी के पढ़ते गए। जैसे बताते हैं ना, कोई भी जाल, कोई भी खादत, जैसे फॉर एग्जाम्पल बाइबल में लिखा छोटा खमीर पूरा आटा को आपको करद कर सकते हैं। बाइबल में लिखा ना, स्मॉल यीस्ट कैन डिस्ट्रॉय द होल, आपको आटा को खराब कर सकते हैं। आपके पास तो रहेगा बट आपके लिए संपत्ति नहीं रहेगा, लायबिलिटी बनकर रहेगा। सो छोटा खमीर क्या हो सकता है? एक छोटा लालसा है, ग्रीड है, एक इम्पल्सिव बाइंग, अपने एक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए तुरंत करना है, और अपना आइडेंटिटी, फॉल्स आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करने के लिए उसको खर्च करना है। छोटा छोटा खमीर आपको कैश फ्लो को नेगेटिव रूप से लेकर जा सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं आपको बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, परखना है, दूर से उसको देखना है। हम इसी रास्ते में जाएंगे, 10 साल का 20 साल के बाद कहाँ हमको आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो पहले देखना। वो बुद्धिमान व्यक्ति दूर से देखकर अपने आप को बचाता है, बाइबल में लिखा है। मूर्ख व्यक्ति सीधा जाकर गिर जाता है। सो हम डिसाइड करते हैं, हम आर्थिक अवस्था से अच्छा होना है, अमीर होना है, गरीब होना है, अच्छा व्यक्ति होना है, फ्रीडम लाइफ जीना है, हम गुलामी की अवस्था में जीना है। हम डिसाइड करते हैं, नॉट गॉड, नॉट द पीपल, योर ओन माइंडसेट एंड योर हैबिट्स। इसलिए एफेसियों बाइबल में 4:22 में हम एक वचन हिंदी में पढ़ेंगे। क्या लिखा, ध्यान से सुनिएगा। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। आमीन। Your old man corrupts according to your deceitful lust. धोखा देने वाला एक लालसा लेवाना एक लस्टफुल थिंकिंग है। वो क्या है? which type of lust? देखो किस प्रकार का आपका उस अभिलाषा है, वो हम डिसाइड करेंगे। उस किसी को आंख का अभिलाषा है, शरीर का अभिलाषा है, जीवन का घमंड है, अपना अगर कुछ भी हो, अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार का वो जाल में फंसा है। यू हैव टू डिसाइड टुडे, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, एनर्जी, मनी उसको सेटिस्फाई करने के लिए। बाइबल बोलते हैं आपको उसी टाइम तो अच्छा लगेगा, वो धोखा देने वाला है, आप उसको ऊपर कैश, आपको पैसा उसको ऊपर वेस्ट करते हैं। सो क्या है, आज खुदा हमको याद दिला रहा है, ऐसे कुछ चीज है अभी भी आप पकड़ कर रखा, उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। छोड़ना चाहिए था, बहुत बार वार्निंग मिल चुका है, बट आप छोड़ने के लिए मन नहीं। क्यों? योर बिलीफ एंड योर हैबिट्स मेक्स यू टू होल्ड। ये वॉच करिएगा, आपको आदत है, आप सोचते हैं, कब तक आप उसको चेंज नहीं करेगा, आपको लाइफ में एक बदलाव देख नहीं सकते। यू नीड टू चेंज योर बिलीफ सिस्टम एंड योर हैबिट, देन ओनली योर लाइफ विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। अदरवाइज जैसे है ऐसे चला, पिछले 10 साल 20 साल अभी भी ऐसे चलेगा, हमारा लाइफ भी उसके साथ खत्म हो जाएगा। अगले वाला हमारा पीढ़ी भी वो ऐसे स्ट्रगल करे, क्योंकि वो लोग तो हमसे सीखते हैं, वो ऐसे ही रहेगा। सो हम लोग क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? What is holding you back from the God's best? Now, एक बार यीशु मसीह को पीछे चलने वाला के लिए भी एक बड़ा सवाल आ गया। उसका ये था, मैं यीशु मसीह को मैं पीछे करता हूँ, ये क्या हमारे लिए प्रॉफिट होगा और लॉस होगा? ये हमारे लिए लायबिलिटी होगा, असेट होगा? मैथ्यू 19:27 में बाइबल में इस प्रकार लिखा गया, एक चेला गए, पतरस यीशु मसीह ने के पास आकर पूछा,
देखो सुनिएगा उन्होंने क्या पूछा। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? What will I get it? प्रभु मैं लायबिलिटी हूं, मैं असेट बनूंगा, भविष्य में क्या होगा, मेरा हालत क्या होगा? So now the question comes, following Jesus is an asset or liability? कैसे आप देखते हैं, आप उसको पीछे चल रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, लॉस और प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन योर माइंडसेट। आपको माइंडसेट का आधार पर होगा और कुछ और किसी कारण से नहीं, क्योंकि खुदा तो जाते हैं हमेशा। हम लोग संपत्ति के साइड में, असेट साइड में रहेंगे, बट प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अपना माइंडसेट को चेंज करने के लिए रेडी नहीं है। आज किसी के लिए एक वार्निंग भी है। बहुत बार खुदा ने आपको याद दिलाया, आप अपना पुराना माइंडसेट को रिन्यू करना नहीं चाहते, आपको मालूम है गलत है, फिर भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए ये हमारे लिए भी एक वार्निंग है। लॉर्ड वांट्स अस टू बी एन एसेट साइड। इसलिए मैथ्यू 6:19 में लिखा है, अपना संपत्ति को, अपना कैश को, अपना चीजों को है इस दुनिया में आपने स्टोर नहीं करना गए। इधर चोर है और है, लोग कुछ भी उसको खराब करने वाला चीज खराब कर सकते हैं। आप अपना संपत्ति को आप स्वर्ग में आप बनाकर डालकर रख दिएगा। यू नीड टू स्टोर इट ऑन द हेवन, नॉट ऑन द अर्थ। दैट मीन्स ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ इज मूविंग फ्रॉम लायबिलिटी टू असेट साइड। देखो वो प्रभु ने उसलिए उसको गिनती दिया, आप इधर फोकस करेंगे ये तो लायबिलिटी होगा, दिखाओ, खरीद लो, ये करो, आप लोगों को बता दो, ये तो एक समय ये होगा। आप निवेश कहाँ करते हैं? इट शुड बी ऑन पीपल, इट शुड बी ऑन द किंगडम फोकस। हम चीजों के ऊपर ज्यादा, इस दुनिया में नाश होने वाला चीज के लिए ऊपर हम खर्च करते हैं, और एटर्निटी के ऊपर हम लोगों को उन्नति के ऊपर हम खर्च करते हैं। वो खुदा उसको देखते हैं। असेट और लायबिलिटी, वेदर इट इज ऑन द अर्थ और इन द हेवन, वो हमें वो डिसाइड करते हैं। इसलिए हर एक जगह पर लिखा है, भक्ति के साथ हम लोग को, संतुष्टि के साथ हमारा भक्ति है तो वो हमारे लिए लाभ होगा, नहीं है तो लालसा आप कर ऐसे आपको दबा देगा, कितना कैश है पूरा आपको लाल जाएगा। ग्रीड विल डिस्ट्रॉय योर सोल, आपको लायबिलिटी साइड में लेकर जाएगा। कैसे उसको होगा? ग्रीड व्यक्ति कैसे ट्रैप हो गया उसको मालूम नहीं होता है। समझ लिए, किसी के अंदर अहंकार है, किसी के अंदर लालसा है, उस व्यक्ति को मालूम नहीं, वो ऑलरेडी तो अंदर जाल में फंस गया है। सभी अपना ऊपर फोकस करेगा, अपना सेटिस्फेक्शन करेगा, अपना बड़ा दिखाना, मोटा होने के लिए वही कोशिश करेगा, मैं पैसा में भी इसमें उसमें मैं बड़ा आदमी बनना है। बट दैट इज ऑल्सो ए ट्रैप, इट्स अ ट्रैप। वॉच where your cash flows on for you or for the focus on outside building things. So God wants us to build the assets, not the liabilities. वो सभी हमारा कैश फ्लो डिसाइड करता है। इसलिए नीति वचन 13:22 में लिखा है, एक धर्मी व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति है, वो अपना संपत्ति पच्चे अपना दूसरा पीढ़ी को छोड़कर जाता है। मूर्ख व्यक्ति तो कमाता है, पूरा खा लेता है। सो यू लीव द इनहेरिटेंस टू चिल्ड्रंस। बट इसका मतलब क्या है? हम असेट बिल्डअप करेंगे, एनी काइंड ऑफ, यू बिल्ड द पीपल, वो भी एक असेट है। यू आर बिल्डिंग द गुडविल, रियली द गुड थिंग्स, दैट इज ऑल्सो एन असेट। वो उसको डिविडेंड आएगा, उसको रिवॉर्ड आएगा। बट आपको अपने लिए लालसा पूरा करने के लिए ऊपर आप पैसे खर्च करते रहेगा तो आपको पीछे लेकर जाएगा। मैं कल रात को एक फोन आ गया, उसको बोल रहा था, एक 18 साल का लड़का अभी ड्राइव करता है, ऑटो चलाता है, क्योंकि उसको परिवार की एक घटना हो गया, पूरा परिवार ने उसको कर्जा में छोड़कर चला गया। सो डैडी तो अभी नो मोर है, बीमारी से उसको डेथ हो गया। इतना ट्रेजेडी हो गया,
उसको लोन नहीं दे पा रहे, वो फंस गया, कैसे आएगा? सो वी डोंट नो, एनी ट्रेजेडी कैन हैपन, फैमिली लायबिलिटीज कैन हैपन, कुछ इमरजेंसी भी आ सकते किसी के लाइफ में, किसी भी प्रकार का है। इसलिए हम लोगों को पहले सिखाया है आपके पास थोड़ा इमरजेंसी फंड भी रखना है और पूरा खर्च नहीं करना है, थोड़ा निवेश कर कर अपने संपत्ति के ऊपर भी, असेट बिल्डिंग के ऊपर भी निवेश कर रखना, ताकि जब इमरजेंसी होगा डिस्पोज कर सकते हैं। आप सोच कर देख लीजिएगा कितना बार इमरजेंसी आ गई, लोग के पास आकर लोन लिया, कुछ बार लिया पर्सनल किधर उधर से, फिर तो हाई इंटरेस्ट से लेना पड़ा, लोग तो मना कर दिया, आपने हाई इंटरेस्ट लोन पेमेंट करते, वो कर दिया तो करते कितना साल हो गया, 5 साल 10 साल 20 साल, वो फंस जाता है। उससे बाहर आने के लिए तो लगता है आपका टाइम निकल गया। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल हाउ वी स्पेंड अवर मनी, द कैश। सो अपना लाइफ में आज हम स्टडी के दोबारा है, हम संपत्ति के ओर से है और कर्जा के ओर से है, वो हम डिसाइड करेंगे। सो द मनी कैन मूव इन द डिफरेंस, बहुत प्रकार का खर्च होता है, शायद एसेट भी हो सकता है, लायबिलिटी हो सकता है, आपको तुरंत नहीं मालूम, वो आपने कैटेगराइज हमने करना। जैसे एक बाइबल में एक कहानी है, एक धनवान व्यक्ति, एक यंग रिच रूलर यीशु मसीह के पास आया, बोला मैं तो ऐसे हूँ, बहुत उसको उन्होंने वो कहा, बट यीशु मसीह ने बोला तुम कितनी अच्छी बात आप बोल रहे ना, असट नहीं है, आप अभी भी लायबिलिटी साइड में है, आप ये एक चीज को ठीक करेगा, आप कर्जा से आप संपत्ति के ओर से आ सकते हैं। बट उसको कहानी में क्या हो गया, उसको मैथ्यू 19 का 22 में ऐसे लिखा, ध्यान से सुनिएगा, हम हिंदी में पढ़ेंगे, व्हाट की दुख होकर चला गया उस व्यक्ति, पढ़िएगा। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। आमीन। बहुत धनी था, जैसे इस पिक्चर में हम देखकर दुख होकर वापस चला, खुशी से नहीं किया, धनवान व्यक्ति था। What happened? He went sad. उनका असेट ने लायबिलिटी बन गया। He thought मैं तो अमीर हूँ, मैं संपत्ति हूँ, बट यीशु मसीह के नजर में वो लायबिलिटी हो गया। इसने बोला एक चीज है आपको बाकी है, that's your liability. Now Lord is asking us, खुदा हमसे पूछ रहा है कौन सा ऐसे एक चीज है आपको लायबिलिटी की ओर से खींच कर जा रहा है, आपको कैश फ्लो उसी साइड में जा रहा है, उसको ठीक करिएगा। बहुत अच्छा है, आपको लाइफ है, कमिटमेंट है, खुदा का पाए है, बहुत अच्छी चीज है, बट रिमेंबर टुडे वन लायबिलिटी आपको आगे बढ़ना नहीं देते है, उसको चेंज करना पड़ेगा। सो एक अच्छा एक लीडर ने कहा, फोकस ऑन फॉर बेटर थिंग्स सो यू कैन लीव द गुड थिंग्स बिहाइंड यू। अच्छा चीज को पीछे छोड़ दो, बहुत अच्छा चीज है ना, बेटर चीज के ऊपर आप फोकस करो, ये अच्छा है। काफी बार लोग आर्ग्यूमेंट करते इसमें गलती क्या, गलती तो नहीं है, बट अच्छी चीज तो बहुत अच्छी चीज के लिए दुश्मन बन सकता है, वो तो बुद्धिमान व्यक्ति उसको समझता है, बाकी लोग अपना आप को जस्टिफाई कर उधर ही खड़ा रहता है। सो बहुत बार आउटसाइड लोगों के लिए है, हम संपत्ति वाला है, हमारा पास मकान है, हमारा पास गाड़ी है, वो चीज है दिखते है, बट अंदर है वो सभी लोन में जी रहे, ईएमआई में जी रहे, लायबिलिटी में जी रहे है, उसको नेटवर्थ है जीरो। हम लोग रिसेंटली एक स्टडी किया था, लोगों को आपको संपत्ति पूरा लिख दो, आपको कर्जा पूरा लिख दो, आपको नेटवर्थ क्या है, आपको कुल मूल्य क्या है, आप बोलो पहले पूरा असेट को वैल्यू निकाल दो, माइनस करो आपको कितना आपको पर कर्जा है, लायबिलिटीज का करो। सो व्हाट यू हैव माइनस व्हाट यू ओ टू द अदर्स, दैट इज योर नेटवर्थ। कुल मूल्य तो तकरीबन जीरो है, बराबर हो गया, जोड़कर देखने के समय सब बराबर हो गया। सो दैट मीन्स यू आर स्टिल ऑन लायबिलिटी साइड। देखो अभी सामने एक पिक्चर आपको दिखा देते हैं, ये असेट है, लायबिलिटी है, खुद आप चेक कर सकते हैं।
असेट का एक लिस्ट है, आपको कैश इन हैंड असेट है, बैंक बैलेंस असेट है, होम है, लैंड है, आपके पास फर्नीचर होगा, व्हीकल होगा, कुछ पेंशन फंड होगा, कुछ इंश्योरेंस होगा, कुछ लोग से वापस लेने वाला है, बैंक में एफडी कर रखा, कुछ निवेश कर रखा, और कुछ चीज है, सामान है, उसको वैल्यू है, ये आपको संपत्ति हो सकता है। लायबिलिटी क्या है? गाड़ी का लोन है, हाउसिंग लोन है, किसी से दोस्त से लोग से उधार लिया गया, पढ़ाई के लिए लोन लिया गया, मेडिकल लोन लिया गया, इंश्योरेंस को लोन लिया गया, बैंक से लोन लिया गया, दूसरा उसको वापस लौटाना है, दुकानदार को देना है, ये सब लायबिलिटीज है। सो काफी बार अभी पैसे आपको कैश फ्लो लायबिलिटी साइड से नहीं जाना, थोड़ा असेट साइड में आपको डाइवर्ट करना पड़ेगा, वो आपको आगे में उन्नति को ओर से लेकर जाएगा। इसलिए गए ये आर्थिक विषय के ऊपर जानकारी लेना बहुत जरूरी है। देखो मैं आपको सामने 4 प्रकार के लोगों को मैं दिखाता हूँ, उन्हीं के लाइफ में कैसे कैश फ्लो होता है वो आपको समझ आएगा। देखो इसमें लिखा EBSI, ये है एम्प्लॉय है, उसके पास एक जॉब है, जॉब करता है, उनके पास तो सिर्फ 5% वेल्थ होता है, उसको कितना मेहनत करेगा, काम करेगा, उसको आमदनी के डिसाइड करेगा। दैट मीन्स योर टाइम इज इक्वल टू मनी। आप टाइम देंगे, ड्यूटी आएगा, काम करेगा तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं है तो देन इफ देयर इज नो टाइम टू वर्क, एक काम नहीं कर पाते, वो चले जाते। दूसरा है कुछ उनके पास तो इनके पास जॉब है, बिजनेस ओनर भी होते हैं, उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास सिस्टम है, लोग उन्हीं के लिए काम करते हैं, उन्हीं का आमदनी क्या है, खुद अपना एक्टिव काम से नहीं है, लोग उन्हीं के लिए काम करते हैं, पीपल वर्क फॉर देम, यू नो, उसको इनकम है कितना, लोग उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, वो डिसाइड करते हैं, ये एक प्रकार का लोग है। तीसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद भी हम काम करने वाला है, खुद उनके पास अपना जॉब है, ऐसे भी लोग है, उनको पास क्या है, खुद कोई कुछ फायदा उठाना है तो खुद नहीं उठा पाएगा, क्योंकि 95% है वो क्लाइंट का आधार पर है, पॉपुलेशन का है। सो कितना उसको काम करेगा, उसको लोग सेटिस्फाइड होगा, उसके पास पैसा आएगा। दूसरा एक व्यक्ति है आई वाला है, इन्वेस्टर है, पहले से उन्होंने कुछ कमाकर बचा कर रखते हैं, फिर क्या है उनके पास निवेश किया गया अमाउंट होता है, वो है उनका आमदनी है, काम करने से नहीं आता है, पैसा को पैदा करता है ना। 2 लोगों के लिए टाइम है, उसके लिए लोग है, कुछ है असेट है, उनके पास क्या संपत्ति है, उसको निवेश कर संपत्ति करते हैं। ये किस प्रकार का थोड़ा बहुत लाइफ चेंज करना हमारा हाथ में है, इट्स नॉट गॉड डिसाइड नहीं करता है, हमारा हाथ में दिया गया। इसमें राइट रॉन्ग कुछ नहीं है, कौन ये सही है नहीं है, वो हमारा ऊपर है। हम असेट साइड में रहना, लायबिलिटी में साइड में जाना, कैसे जीना है वो है। सो फॉर सम पीपल टाइम इज मनी, कुछ लोगों के लिए पीपल और द मनी, क्योंकि उसको समय को निकाल सकते हैं, क्योंकि लोग उनके लिए काम करते हैं। दूसरा लोग के पास उनको संपत्ति भी है, टाइम है, उन्हीं के लिए तो पैसे काम करते हैं, खुद काम नहीं करते, लोग काम नहीं करते, खुद पैसा करते हैं। सो टाइम एंड अवेलेबल होता है, सो वी नीड टू मूव। सो सभी लोग कैसे कैश को हैंडल करते हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो डिसाइड करते हैं। सो आज मैं समराइज करता हूं, हमने क्या सीखा है। हमारा हाथों का नकेदा कैसे प्रभाव कैसे हमारे जीवन पर करते हैं। इट इज द पीपल हु डिसाइड हाउ टू यूज द मनी, लोग डिसाइड करते हैं कैसे पैसे को इस्तेमाल करना है। प्रॉब्लम लोगों को पास है, पैसे का खुद पैसे के पास नहीं है, प्रॉब्लम इज द पीपल, इज द माइंडसेट एंड द एटीट्यूड। खुदा उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारा आर्थिक इस प्रकार का जानकारी लेकर इस सिद्धांत को हम इंटरप्रेट कर सही चॉइस को चुनकर हम सही तरह हम निवेश करते गए, कैश फ्लो को मैनेज करते गए, हमको एक आजादी के उस पे लेकर जाएगा। हमने काफी डिस्कस किया है फर्क क्या, संपत्ति क्या है, लायबिलिटी क्या है, कर्जा क्या है, सो दैट
हम लोग हमारा कैश फ्लो को असेट का ओर से थोड़ा डाइवर्ट करेंगे, पूरा लायबिलिटी साइड से, और पूरा हमारा जरूरत को पूरा करना, खर्चा को पूरा करने के लिए नहीं करेंगे। सो रिच पीपल, धनवान लोग, अमीर लोग कैसे पैसे को इस्तेमाल करते हैं संपत्ति प्राप्त करने के लिए। सो पुअर पीपल क्या हो जाता है, उन्हीं के लिए कितना कमाते हैं वो पूरा लायबिलिटी के ऊपर खर्च करते हैं। वो ऐसे सोचकर खर्च करते हैं मैं तो संपत्ति प्राप्त कर रहा हूँ, वो संपत्ति नहीं होते। मैंने काफी लोगों को बोला इतना इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स मत ले लो, है वो संपत्ति के बिल्डअप नहीं करेगा, वो आपके लिए लायबिलिटी है। आप सोचते इतना हेवी बहुत बड़ा मकान आप ले लिया गए, वो आपके लिए लायबिलिटी है, खर्चा नहीं है। सो काफी बार लोग सोचते हैं ना, उसको नीचे मिडिल क्लास, उसको नीचे वाला का सोच बिल्कुल अलग होता है, उसको इंटरप्रिटेशंस अलग होता है। ये चॉइस है, ये हमारा फाइनेंशियल नॉलेज का आधार पर है। इसलिए मैं हमेशा लोगों को सिखाता हूँ, आप इंफॉर्मेशन नॉलेज प्राप्त करते हैं, वो आपको अंडरस्टैंडिंग को लेकर आना, उसको सही प्रकार अनुवाद करने के, इंटरप्रेट करने का, उसको फर्क क्या है जोड़कर देखने के लिए मदद करना, ताकि आपको विजडम है। सो सही फैसला आप जिंदगी में सही समय पर कर पाएंगे। सो दीज थ्री वर्क्स टुगेदर, नॉलेज, द विजडम, द अंडरस्टैंडिंग एंड द विजडम्स। ये भी हमने देखा है, असेट चीज के ऊपर हम कैश फ्लो को खर्च करते रहेगा, कुछ समय के बाद वो है संपत्ति पैसा आपको पॉकेट में डालेगा, नहीं तो लायबिलिटी बनेगा, पैसा एवरी मंथ आपका जेब से निकालेगा, खर्च करते रहेगा। एक सावधान रहने का है, ग्रीड के बारे में बात किया है। हम लोग एक ग्रेटिफिकेशंस, एक प्रकार का संतुष्टि प्राप्त करने के लिए खर्च करते हैं, और अपना लाइफ को दूसरा के ऊपर हम कंपेयर करते हैं, इमोशनली स्पेंड करते हैं, ये सभी लायबिलिटी है। हम सोच रहे हैं हमने असेट कर दिया, अच्छा किया, वो तो आपको फीलिंग है। समटाइम्स अच्छा फील खरीदने के लिए काफी चीज को हम लेते गए, खरीद लेते गए, वो असेट नहीं है, लायबिलिटी है। सो हर एक अपना इंटरप्रिटेशन कर आर्ग्यूमेंट मोड में चला जाएगा। सो इसलिए गए आप अपना ऊपर खुदा ने छोड़ दिया, आप ही फैसला करेगा। ये हम जानना भी जरूरी है, क्योंकि अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं। हमारे देश में भी आप देख सकते हैं 5% ऑफ द पीपल 95% को कंट्रोल करते हैं। गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। इसलिए हम असेट लायबिलिटी के दोबारा हम लोग इसको जानकारी के आज प्राप्त किया गया, हमारा हाथ में है। कैश फ्लो को थोड़ा आप डाइवर्ट करना पड़ेगा, अपना आप को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। कुछ सालों के लिए अपना आप को सेल्फ कंट्रोल लेकर जबरदस्ती से कुछ कैश फ्लो को डाइवर्ट करना पड़ेगा, ताकि आपको लाइफ में अगले 10-20 साल के बाद एक बहुत फर्क को आप देख पाएंगे। काफी बार मैंने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का किया गया ना, कंपाउंडिंग इफेक्ट पड़ेगा 20 साल के बाद। सो कैश फ्लो उसको करना है, थोड़ा अलग करना है। आज का यंगर जनरेशन एक ऐसे सोच में आएगा, ऐश करो, एंजॉय करो, भविष्य कौन देखते हैं, ऐसे बोलकर इमोशनल स्पेंडिंग करते हैं। उसी जाल में आप फंसना नहीं, ये आज के लिए आपको वार्निंग है। काफी लोग, अच्छा एक धार्मिक लोग भी उसी में फंस गया गए, इंप्रेशंस करने के लिए, टेम्पररी फीलिंग के लिए। डोंट डू दैट। मे द लॉर्ड हेल्प यू टू मूव फ्रॉम लायबिलिटी टू असेट साइड। इसलिए हम अभी प्रार्थना करेंगे, इस और भी प्रभु हमको सिखाएंगे फाइनेंशियल नॉलेज, हम उसको और प्राप्त करेंगे और हम सही फैसला करेंगे। हमारा कैश फ्लो को असेट का ओर से करने के लिए हम खुदा से मदद मांगेंगे। लेट्स प्रे टुगेदर। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं सही फैसला करने में, हमारा कैश फ्लो को सही तरह अलोकेट करने में, ताकि एक संपत्ति को प्राप्त करने की ओर से हम निवेश कर पाएंगे। काफी बार हम लोग हमारा माइंडसेट के बारे में सोचा नहीं, हम तो पैसे को देखा। आपने आज दोबारा याद दिलाया हमारा रिच माइंडसेट, पुअर माइंडसेट कैसे होता है। हम तो परमेश्वर आपका संतान है प्रभु,
हमारा खूबी है, हमारा आइडेंटिटी है मटेरियल थिंग्स को, लोगों को तृप्त करने में नहीं। हम तो अपना आइडेंटिटी को तो हम पहचानते हैं, हम तो रॉयल प्रीस्ट है। शायद हम स्लम में छोटा मकान में रहेगा, कोई बात नहीं, हम लोग हमारा पदवी मिला है एज अ रॉयल प्रीस्ट। इसलिए हमारा माइंडसेट को चेंज करने में, हमारा आइडेंटिटी में स्थिर रहने के मदद करिएगा लॉर्ड। हमेशा हम लोग संपत्ति के ऊपर निवेश करना, कैश को फ्लो को अलाउ करना है, लायबिलिटी साइड में नहीं, ताकि उसको दोबारा आपको महिमा कर सकते हैं। हम कर्जा में रहेगा, आपको महिमा कभी नहीं लेकर आ सकते हैं, हम दूसरा को आशीष नहीं बन सकते हैं प्रभु। इसलिए है हम लोग हमेशा लेने वाला, बाद में इमरजेंसी एवरी टाइम लोग से उधार लेने वाला नहीं, हम देने वाला। मेक अस एज अ सोर्स नॉट एज अ वांट। जैसे हम लोग रैट रेस का ऊपर हमने ट्रैप में फंसना नहीं, एडवर्टाइजमेंट के कारण से लोग को तृप्त करने का जार में, हमारा लालसा के कारण में अपना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस, अपना संतुष्टि प्राप्त करने के लिए प्रभु हमारा आदत को अपना कंट्रोल करने के लिए मदद करिएगा प्रभु। अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, फॉल्स आइडेंटिटी के ऊपर दूसरा को खुशी करवाने के लिए हम लोग प्रभु हमारा कैश को अलाउ नहीं करेंगे प्रभु, मदद करिएगा। हम कभी भी दूसरा को इम्प्रेस नहीं करेंगे, उसी के लिए हम खर्च नहीं करेंगे प्रभु। दूसरा लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें, उसके लिए हम खर्च नहीं करेंगे। लॉर्ड हेल्प अस टू मेंटेन अ प्रॉपर कैश फ्लो। हमेशा वो अंदर आएगा, हमेशा बाहर नहीं जाएगा, सो दैट हमारा पास कुछ होगा ताकि इमरजेंसी के लिए और कुछ काम के लिए हम दूसरा के लिए भी मददगार हो सकते हैं। लॉर्ड हेल्प अस टू लॉर्ड क्रिएट एन वेल्थ एज एन एसेट नॉट अ लायबिलिटी ओ गॉड। सिर्फ इस दुनिया का नहीं, आपने बताया हमेशा के लिए भी हम लोग एसेट को खरीद सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। आई प्रे लॉर्ड, कोई भी किसी भी ट्रैप में है आज प्रभु, आपने उसको कन्विक्ट किया है, उसमें बाहर आने के लिए, माइंडसेट को चेंज करने के लिए सहायता करिएगा लॉर्ड। जैसे लाइफस्टाइल है उसको कैश फ्लो पैटर्न को थोड़ा मॉडिफाई करने में आज उसको मदद करिएगा लॉर्ड। आज का फैसला इनका हमेशा का जीवन तक एक प्रभाव डाल पाएगा, यीशु मसीह के नाम से आमीन।